Morning students, today we are going to start the chapter Constitutional Design of class 9th. This is the introduction of Constitution as a whole. We will take the example of South Africa with respect of apartheid is explained in this chapter, and the period in which Indian Constitution was made is discussed also, and the key feature of Indian Constitution are discussed also. What is a constitution? The basic rules that the citizens and the government have to follow are called as constitution. Means the constitution is the supreme law of the country, and the constitution determines the rights of citizens and the power of the government and how the government should function or work. You can see in this picture that is a struggle against apartheid, that democratic constitution in South Africa after the end of the apartheid. What is apartheid? Apartheid is referred to the policy of discrimination on the basis of race, skin, color. This is the main features of apartheid. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. Means white people imposed the apartheid policy on the black people or native of the South Africa. They were forbidden from living in white area. Means they could work in white area only if they had a permit. Means by the permission of white people they could work in the white area. There are separate schools and universities, separate shopping centers, separate coaches and trains. Marriage between persons belonging to two races was a criminal offense. They considered the marriage between two races as a crime, and all schools, universities, all things are separate for whites and blacks. There were restriction on movement from one place to another. They can't move. Means black people couldn't enter in the white area. Non-whites had no votes. The policy of apartheid denied human rights to the non-whites. Means by the policy of apartheid, non-whites had no rights of votes. Segregation. What is segregation? In trains, buses, taxis, hotels, hospitals, school and colleges, libraries, cinema hall, theaters, beaches, swimming pool, public toilets were all separate for the white and black. This is called segregation. Means all these are separate for white and black people. They could not even visit the churches where whites worship. They divide their God's place. Where white people pray, worship their God, black people could not enter there. Black could not form association or protest against the terrible treatment. They can't oppose this treatment. Means black could not oppose this treatment. You can see in this picture drinking fountains. This is for white and this is for black or colored people. And by the end of this policy, Kaise and Hua, in 1910, the African Congress, National Congress was formed. Congress means together, work together.
तो ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं कांग्रेस। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी एक लोगों का ग्रुप था, उन्होंने अपने ग्रुप को ये नेम दिया। तो वहाँ पे जो बनी तो उन्होंने भी अपने उस ग्रुप को नेम दिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड विच एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। 1910 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने गोल अपना सेट कर लिया, एम बना लिया कि वो साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका वहाँ पे बनाएंगे। जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक होगी और नॉन रेशियल होगी। द मूवमेंट वाज इंटेंसिफाइड इन 1950। तो इसको मतलब सप्रेस किया गया मूवमेंट को। In 1960, the African National Congress was banned by the white people and its leader sent to the jail। मीन्स जेल में डाल दिया जो इनके लीडर थे, जिसमें सबसे मेन आपको आगे पता चलेगा कौन है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इट्स ओन आर्मी। इसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी बनाई टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल रजमी। तो ये जो वाइट पीपल के ख़िलाफ़ उन्होंने मतलब फाइट करने के लिए जो है अपनी आर्मी बनाई। द UN ऑल्सो कंडेम्ड द पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका। बाय द एंड ऑफ 1980 द इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज कम्प्लीटेड। जब ये सारा उन्होंने ये आइसोलेशन चला रखी थी तो ये सारा बाय द एंड ऑफ 1980 तो ये भी सारा कंप्लीट हो गया उनका। and with it began the process of ending the apartheid। जब ये प्रोसेस चल रहा था अपार्थेड को ख़त्म करने का, द बैन ऑन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज लिफ्टेड, ख़त्म कर दिया गया। एंड इट्स लीडर रिलीज्ड, छोड़ दिए गए। एंड नेगोशिएशंस बिटवीन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसेस एंड साउथ अफ्रीकन, तो ये उनमें डिवाइडेशन हो गया। एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉर फ्रेमिंग a new constitution which would give all South African the right to vote। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाना शुरू किया उसमें सभी को राइट टू वोट था, मीन्स इक्वल राइट। In April 1994 election were held in South Africa as per the new provision। तो जो इलेक्शंस हुई उनकी गवर्नमेंट के लिए तो वो 1994 में न्यू प्रोविज़न की आधार पे हुई। तो नेक्स्ट है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वन विद द थम्पिंग मेजोरिटी। मीन्स पूरी मेजोरिटी के साथ नेशनल कांग्रेस अफ्रीका में वन किया, उन्होंने जीत गया। एंड फॉर्म्ड द नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो 1910 में उन्होंने एम किया था, बनाया था अपना, तो वो उन्होंने इसमें 1994 में पूरा कर लिया। मीन्स दे फॉर्म्ड द नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक, फ्रीडम का जो फ्लैग था उनका, नेशनल फ्लैग जैसे हमारा है ट्राई कलर का है, तो ऐसे उन्होंने अपना फ्लैग अपनी फ्रीडम को दर्शाने के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ड मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। फिर उन्होंने भी हम अपने देश में जो डेमोक्रेसी बॉर्न हुई उसको पूरी दुनिया में दिखाया। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a constitution। means white and black people sat together to form the new constitution for black and white equally। it gave to its citizens the most extensive right available in any country। जैसे हर कंट्री में सिटीजन्स को राइट्स होते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी वो सिटीजन्स को राइट्स दिए। नया कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट इन द सर्च ऑफ फॉर अ सोल्यूशन
to the problems. Nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. Everybody should become part of solution, whatever they might have done or represented in the past. मीन्स के जो भी पीछे हो चुका है उसको छोड़ के हर किसी को इक्वल राइट्स, कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक में सब्जेक्ट में छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को इक्वल राइट्स एंड हर बात में एक मतलब इक्वलिटी वहाँ पे लाई जाएगी. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड वेयर दे फॉरगट पास्ट सफरिंग. जो पीछे उन्होंने जो पॉलिसीज़ को झेला है वो सारा भूल के सॉट कॉपरेशन ऑफ ऑल द रेसेस विच मेक साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड सोशल जस्टिस. तो इन वैल्यूज़ के ऊपर, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो पीछे पास्ट में उनकी सफरिंग्स थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको छोड़ के. नेक्स्ट इज़ नेल्सन मंडेला, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका. जैसे गांधी जी हमारे लिए नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, वैसे ही नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका में वहाँ पे उनको गांधी कहा जाता था. मतलब हमारे एग्ज़ाम्पल ली जाती थी वहाँ पे. नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ द मोस्ट एबल, एफिशिएंट एंड फॉर साइटेड लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये वहाँ का लीडर था जिसको उन्होंने जेल में डाल दिया था. इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स. तो ये अपना पूरा जो इन्होंने एम किया था, विज़न लिया था, उसको पूरा किया इन्होंने. एंड यू कैन सी द पिक ऑफ नेल्सन मंडेला, जिसको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है. And due to participation in the movement against apartheid, he was sentenced to life imprisonment. in 1964 में इनको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि ये जो है अपार्थेड के अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट्स चलाई थी और ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेन लीडर थे. तो ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन प्रिजन. तो इन्होंने जेल में काटे 28 ईयर्स. इन द 90s, ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड द सपोर्ट इट गॉट फ्रॉम अदर कंट्री of the world, South African regime was completely isolated from the world. मीन्स के उन्होंने बाकी कंट्री से भी उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उनसे सपोर्ट ली, तो ये सारा काम उन्होंने अपना वो किया. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फेवरेबल एटमोसफियर, नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज इन 1990 में उनको इम्प्रिजनमेंट्स में से रिलीज़ कर दिया, जेल में से छोड़ दिया गया. In 1994, the first democratic election were held and Nelson Mandela was elected as the president of South Africa. ये डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का सबसे पहला प्रेसिडेंट था. Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? A constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in a territory, means all the citizens, and also the relationship between the people and the government. एंड ये सारा जो है हमें इन चीज़ों के लिए, दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स? कैसे क्या काम करता है? इट जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट. सभी में विश्वास डालता है. जैसे हमें पता है कि जब हम 18 ईयर के हो जाएंगे तो वी हैव टू राइट द राइट टू वोट. तो हमारे को ये चीज़ ट्रस्ट लाता है.
and coordination that is necessary for different kind of people to live together। हम लोग अलग अलग जैसे डाइवर्सिटी से हैं, लैंग्वेज है, रिलीजन है, तो उसमें भी ये एक कोऑर्डिनेशन बनाता है हम सब में। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे एक गवर्नमेंट वर्क करेगी, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीज़न, किसके पास कौन से डिसीज़न की पावर है, ये भी स्पेसिफाई करेगा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की हर पावर को। इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट की पावर्स को भी चेक लगाता है, मीन्स कि वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर पाएँ। एंड टेल आस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीज़न आर, और हमारे राइट्स को भी बताता है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, हमारे को भी इनसे इंस्पिरेशन मिलती है, एस्पायर करता है, मीन्स के हम अपनी सोसाइटी को, हम भी अपने जो राइट्स हैं उनको यूज़ करके गुड सोसाइटी को क्रिएट करें। एंड व्हाट इज़ अ रियलिटी, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रियलिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑल द कंट्रीज़ दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल द कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देम सेल्व अ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये एग्जांपल्स हैं एक दो। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल द डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे जो आपको एग्जांपल्स दे के समझाया गया है। डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एवरी कंट्री ड्राफ्ट्स इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सभी कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट करते हैं अपने कंट्री की नीड के अकॉर्डिंगली। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, मीन्स सिटीजन्स के, जैसे हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हाँ हमारे लिए वो सुप्रीम है, मीन्स हमें उसको फॉलो करना ही होगा। तो ऐसे इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे वर्क करेगी। इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बना, क्यों बना हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए जो सर्कमस्टांसिस अंडर विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप, तो उसके लिए जो हालात बने। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर, कैसे हमारे देखो कितनी लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, कितने रिलीजन यहाँ पे हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, उसके बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ अप करना तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, इजी अफेयर नहीं था। द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स, मीन्स कि ये सारा जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके हर तरफ से उनके बारे में सोच के, उनके स्टेटस के बारे में हर चीज़ को सोच के फिर ये डाला गया है। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, तो हमारा जो पार्टीशन हुई है, देखो उधर पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं और इधर हिंदू, और ये जो पार्टीशन है ये रिलीजियस बेस्ड है। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द
बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जब तब ये इधर आना उधर जाना, ये इसमें हमारे जो हमको मिला है 10 लाख पीपल वर किल्ड, इसमें इतने लोग मारे गए थे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स to decide whether they wanted to merge with Indian or with Pakistan or remains independent. The merge of these princely states was difficult and uncertain task. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, फ्री थे, उनको छोड़ दिया एज इट इज़ कि आप चाहे पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, चाहे इंडिया के साथ मिल जाओ, चाहे इंडिपेंडेंटली खुद सर्वाइव करो। तो ये एक बहुत ज़्यादा उनको अपने साथ मिलाना एक बड़ा मुश्किल काम था, मतलब मे बी हो या ना हो, दैट इज़ अनसर्टन। When the constitution was being written, the makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. जो ये मतलब जब लिख रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो वरीड थे हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। एंड द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उन्होंने सोर्स के कहाँ से उनको पता चला कि क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं। उनको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उन्होंने वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, अमेरिकन, सोवियत, कैनेडियन, साउथ अफ्रीकन, आयरिश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी आउट किया। फिर उसके बाद में डिसीज़न लिया पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मियरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। हमारी जो है इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रिवेंजुएट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफ़र आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। मीन्स के जो हमारे आर नेशनल मूवमेंट्स, ये स्ट्रगल अकेला फॉरेन रूल्स के वो नहीं था, हमारे मीन्स के कंट्री में हमारा जो सोशलिज्म एंड ये सारी चीज़ें लाई जा सकें। तो ये एक स्ट्रगल थी हमारे लिए, एक बेस्ट उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए। द फैमिलियरिटी with the political institution of the colonial rule was helped develop and agreement over the institutional design, the experience gained by the Indian in the working of legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its institutions। मीन्स के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे हमारा लेजिस्लेचर वगैरह है, तो ये सारा मीन्स उन्होंने अपने पूरे जो पुराने एक्सपीरियंसेस वगैरह सभी को पूरा काम करके अपने इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन किया कि कैसे वो एक बढ़िया वेरी यूज़फुल फॉर द कंट्री जो बना सकें, बढ़िया अपना इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एफ़र्ट्स की। मैनी ऑफ आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड बिल ऑफ राइट्स इन USA, so they incorporated some good points of the constitution of these in the Indian constitution। ये सोर्सेस थे उनके पास, इनमें से जो भी उनको अपने कंट्री के लिए बेटर लगे और बेनिफिशियल लगे, उन्होंने वो वाले पॉइंट्स सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिए। They also got inspired from the constitution drafted by Motilal Nehru and 8 other Congress leader in 1928 में उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी। एंड द आउटलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prepared by the Indian National Congress at its कराची सेशन in 1931। तो इसके लिए पहले उन्होंने ये चीज़ कमेटी बनाई
एंड उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मतलब 1928 में काम शुरू कर दिया। 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची में सेशन था तो उसमें उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइनिंग मीन्स मेन जो प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने उसमें डाल दी। तो ये मोतीलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद एंड सरोजिनी नायडू, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड by a constituent assembly set up under the cabinet mission plan 1946। मीन्स के प्लानिंग की गई पहले सारी जो 1946 में मिशन उन्होंने स्टार्ट किया उसके अंडर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। द असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स। इसमें क्या था, जो प्रोविंसेस से आए थे 292 मेंबर, स्टेट्स से 93 मेंबर, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी जो उनमें से 3 मेंबर एंड बलूचिस्तान में से 1 मेंबर। द असेंबली held its first meeting on December 6, 1946 में हुआ, इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई। It elected Dr. Rajendra Prasad as its chairman and the Constitution Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and Pakistan। मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले ही उन्होंने अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली थी, एक पाकिस्तान के लिए और एक इंडिया के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। मीन्स दोनों के लिए तो 389 मेंबर्स थे, बट जो ओनली इंडिया का बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। ये जो बन के रेडी होके अप्रूव हो गया तो ये डेट है 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी होके अप्रूव हो गया था। बट इट केम इनटू अफेक्ट, लागू कब हुआ, ऑन जनवरी 26, 1950, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। ये जो हैं आपके साथ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। एंड वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर दैन 69 ईयर। क्यों हम इसको मतलब ऐसे ही कैरी ऑन करके रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश। बहुत सारे कंट्रीज़ ने दोबारा से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया है, बिकॉज दे द बेसिक रूल्स फॉर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि जो है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसको री राइट किया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। उनके लिए वो एक पीस ऑफ पेपर की तरह ही है। नो वन एक्चुअल फॉलो इट, कोई उसको नहीं मानता। द एक्सपीरियंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका जो है पूरा अलग तरीके से है। नो लार्ज सोशल ग्रुप और political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। मीन्स हमारे जो है नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और political parties has ever questioned, तो ज़्यादातर इसके ऊपर जो है क्वेश्चनिंग नहीं होती है। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक मतलब आम सी बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक आम अचीवमेंट नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया
It was elected mainly by the member of the existing provincial legislature. जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रिप्रेजेंटेड हमने लोग वहाँ पे वो किए. इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. उसी में से हमने वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स में से ही उसको इलेक्ट किया है. This ensured a fair geographical share of member from all the region of the country. इसमें कोई वो नहीं है, सभी एरिया में से इक्वली जो है मेंबर्स को चूज़ किया है. द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन. मीन्स इसमें ये सारे को कंसिडर किया गया है. डिफरेंट लैंग्वेजेस के मतलब हर ग्रुप को इसमें कंसिडर किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्कड इन आ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर. मीन्स के ये एक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था वो एक पूरा सभी के लिए एक ओपन वे में और सिस्टमैटिक वे में उन्होंने एक बढ़िया तरीके से कर रहे थे. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से पहले कि किस बात को सबसे पहले सभी के बारे में सोच के प्रिंसिपल्स सेट किए गए, रूल्स जो भी हैं कि किस के बेस के ऊपर उसको लिखा जाएगा वो सेट किया. देन आ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड आ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन. उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसका चेयरमैन बनाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को. उसने प्रिपेयर की एक ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ. सेवरल राउंड ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज. तो हर मतलब टॉपिक के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुई, बहुत सारे राउंड हुए डिस्कशन डिबेट के. उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को मतलब आगे लागू किया. मोर दैन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड. चेंजेस, अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस, जो उसमें 2000 चेंजेस हो चुकी हैं. एंड एवरी डॉक्यूमेंट presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. मीन्स के जो भी वहाँ पे बोला गया है उस हर चीज़ को रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड लिखा गया मीन्स, और उसको संभाल के रखा गया. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. मीन्स पहले क्या था, उसके ऊपर चेंजेस क्या हुई, तो ये सारी मतलब उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट की मतलब किसी नेम के अंडर उसको संभाल के रखा हुआ एज ए रिकॉर्ड. व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स. तो हमारे पास इसके 12 वॉल्यूम्स हैं. जैसे बुक के वॉल्यूम्स होते हैं तो हमारे डिबेट के वॉल्यूम से. दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो ये डिबेट्स हैं उसमें प्रोवाइड किया हमारे लिए हर प्रोविज़न को. एंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न थी जो उसको मतलब हर चीज़ को उन्होंने डिबेट किया, उसके ऊपर बहस की. एंड ये जो है इससे क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग था वो बाहर आया कि वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. Constitution adopted on 26 November 1949 and enacted on 26 January 1950 when India became a republic, and that day is celebrated as the Republic Day
in India. The constitution reflects the best mind of the country. Its member presented many Indian constitution is a living document, means we can change by the timing. तो ये मेकर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले। और लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। Those who draft the Indian Constitution felt that it has to be accordance with the people's aspiration and changes in society. तो जो भी है जिसने भी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, दोज हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोगों की मतलब जैसे सोसाइटी में चेंजेस हुई अकॉर्डिंग टू द सोशल पोलिटिकल सिचुएशन, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया। दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। मीन्स उन्होंने इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचा कि ये मतलब एक रिलीजन के बेस पे है, ये वो मीन्स इसको बदला नहीं जाएगा, तो इन चीज़ों को उन्होंने नहीं वो कंसिडर किया। दे मेड प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसीलिए इसमें चेंजेस होती गई। दी चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और इनको क्या कहा जाता है जो चेंजेस की गई हैं टाइम टू टाइम? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। टिल डेट 104 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इतने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं 104। द अमेंडमेंट्स प्रोसीजर प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एज फॉलो। ये जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे पास रिटन फॉर्म में है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कैसे कर सकते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ अमेंडमेंट, तो इसकी भी आगे 3 कैटेगरीज हैं चेंजेस की। अमेंडमेंट प्रोसीजर प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फॉलो। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ अमेंडमेंट्स। First category, amendment can be done by simple majority of members present and voting before sending it for the president assent। प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजने के लिए पहले वो मेजॉरिटी की यस होना, ये एक सबसे पहली कैटेगरी में आता है कि मेजॉरिटी ने यस कर दी, फिर उसको प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजा जाता है। बिकॉज वी नो दैट के विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट नो बिल नो अमेंडमेंट कैन बी चेंज्ड इन द law। In the second category, amendments require a special majority। उसमें तो सिंपल मेजोरिटी थी, इसमें स्पेशल मेजोरिटी है, मतलब थोड़ा टफ है। Such an amendment can be passed by each house of the parliament by the 2/3 majority of member of the house present and voting, and then sent to the president for his assent। मीन्स ये इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी मीन्स उनकी यस हो, और फिर वो सारा डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट को भेजा जाए और उसकी असेंट ली जाए, मीन्स साइन लिया जाए। द थर्ड कैटेगरी अमेंडमेंट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू पास, ये उससे डिफ़िकल्ट है। बिसाइड द स्पेशल मेजॉरिटी मेंशन्ड इन द सेकंड कैटेगरी, द सेम हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय एट लीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो है उसमें से मिनिमम 50% स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव हो, तो इसमें थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है। गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लीडर लाइक महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज़ अबाउट ड्रीम एंड प्रॉमिस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक फॉर द नेशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे लिए गाइडिंग वैल्यूज़ हैं कि जो भी
नई गवर्नमेंट आती है या हम इसके सिटीजन्स बनते हैं, तो ये हमारे लिए एक गाइडिंग वैल्यू का काम करती है, गाइड का काम करती है। तो जो महात्मा गांधी ये सभी लीडर्स ने, जवाहरलाल नेहरू या B.R. अम्बेडकर ने अपना ये एम रखा था, सपना लिया था, प्रॉमिस किया था, तो उन्होंने नेशन के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द preamble of the constitution speak about the philosophy on which entire the constitution has been built. It is the soul of Indian constitution. What is preamble? Preamble is an introduction of the constitution. So it is also known as the soul of the Indian constitution, in which it speaks the preamble of the constitution speaks about the philosophy of the entire constitution, means it review the basic principles of the constitution. You can see this is the preamble. These are the first word by which the constitution starts. We the people of India. These are the first lines of the preamble. Following are the value mentioned in the preamble. किन किन चीज़ों को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ अप करने टाइम आगे प्रिंसिपल्स को माना गया है? sovereignty, socialism, secularism, democratic and republic nature of India, justice, liberty, equality and fraternity. Sovereignty means not under the control of any other outer authority, means कि हमारे ऊपर किसी और का कंट्रोल ना हो। जैसे ब्रिटिश पीपल का था, तो हम अपने मतलब जो है रिप्रेजेंटेटिव अपने गवर्नमेंट खुद बनाएं और किसी आउटर अथॉरिटी का कंट्रोल ना हो। सेकुलरिज्म मीन्स जिसमें हर धर्म को इक्वल माना जाए। नो रिलीजन वुड बी गिव द प्रेफरेंस, मीन्स जिसको कोई आगे सिंगल एक भी रिलीजन को डिनाई ना किया जाए और सिंगल को प्रेफरेंस ना दी जाए, सभी धर्म के लिए इक्वलिटी हो। डेमोक्रेटिक जिसमें फुली पार्टिसिपेशन ऑफ द people. Voting means right to vote to the every citizen. Justice means everybody equal before the law. And liberty, freedom. We are totally free to express our views and जो भी हम मतलब अपने फ्रीडम के लिए हम कोई भी धर्म अपनाना चाहें, कितना स्टडी करना चाहें, कहीं पे भी रहना चाहें, तो लिबर्टी फॉर दैट। इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल इन द कंट्री, राइट्स इक्वल, वोटिंग राइट इक्वल, स्टडी का है, हर चीज़ जो एक सिटीज़न के लिए, तो फॉर एवरी सिटीज़न ऑल आर इक्वल। फर्टर्निटी मीन्स फर्टर्निटी इज़ ब्रदरहुड, भाई भाई, तो देर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, तो एवरी वन इज़ इन द ब्रदरहुड, मीन्स कि हर लोग जैसे मतलब एक दूसरे को भाई भाई की मतलब नज़र से देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।